Hello and Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, welcome you all in today's class. As you know, we are learning lesson number 6 of your English textbook, and the name of the lesson is A Pod of My Own. In the previous video, we have learned it is first 3 paragraphs. Today we are going to start from the 4th paragraph. Here I request all the students pause the video for a while, get your books, keep them in front of you and open page number 57 so that I will do a loud reading for you, or I can say model reading for you, and you have to learn carefully. I hope you have done it. You have kept your book in front of you. Now let me read. Let's start. I was curious. We headed towards the car park station with our luggage. The station's automatic glass doors opened up to these high-tech little vehicles. They were queuing up outside, waiting for passengers. They looked like tiny hatchback cars, almost completely oblong in shape. I could hardly see the rubber wheels, and their windows reminded me of the adorable face of a honeybee with long black eyes. Now from page number 58. People got in, pressed a button, and the doors closed. The little pods were fast and made almost no noise, and they were entirely computer controlled. Imagine a car without a driver. I had only read about something like that in a science magazine. Here, I was actually going to sit in one. Before boarding a pod, Mom selected destination options on a touchscreen computer on the platform. After she had made her selection, the computer confirmed it. Our pod arrived very soon, and when the doors opened, I saw it was much roomier than it looked. 4 people could fit in with ease, and there was plenty of space for luggage. We got in, and Mum pushed the button to close the doors. Once inside, I felt as if we were in a tiny space shuttle. The seats were comfortable and it was very clean. यहाँ तक ही हम आज पढ़ेंगे. Before we will understand today's part, let me quickly recapitulate what we have learned in the previous video, or we can say in the previous lecture. I told you in this lesson the writer is going to tell us something about the new mean of transport, that is a pod. I said you the writer and his sister, namely Nancy, Diwali vacations for them were thrilling, were exciting, because they were going to visit their uncle who was living in London, and this time the writer was sure that this time he will write in the London Eye, which he had missed the previous time he was there. The writer says us that our jet landed at Heathrow Airport at a very convenient time, at a very relaxing time, and they all had decided that they will reach their uncle by their own. By doing so, they got to ride in a new form of transport, that is a pod. These pods are, the real name of these pods are Ultra Purity, where UL stands for Urban Light Transport and Purity means Personal Rapid Transit. And but to the writer, the pod sound is cuter. He says it pod. Now today's lesson. I was curious. मैं here I means writer हमसे क्या रहा. I was curious. मैं excited था. Curious means to know something, to wish to know something, eager to know or learn something. यहाँ मैंने लिख के रखा है. Means curious means eager to know or learn something. When you are eager to learn something, when you want to know something, जब आप जानने के शायक हो, जब आपका शौक हो कि इसके बारे में मुझे पता चले, that is called curious. And the writer was curious to know about the new mean of transport he is talking about in this lesson, that is a pod. We headed towards the car park station with our luggage. The writer says we headed. हम चले गए towards the car park station. उस स्टेशन की तरफ जहाँ पे ये cars park थी, जहाँ पे ये cars रुकी हुई थी, where the passengers board the pod, where the passengers board these type of cars,
एंड दे स्टार्ट देयर जर्नी विथ आवर लगेज, अपने लगेज लेके, अपने बैगेज जो हमारे साथ थे वो लेके। द स्टेशन ऑटोमेटिक ग्लास डोर्स ओपनड अप टू दीज हाई टेक लिटल व्हीकल। द स्टेशन ऑटोमेटिक ग्लास डोर, स्टेशन के जो ऑटोमेटिक मीन्स वो जो खुद काम करते हैं, जो जिनको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं होते, जो खुद ब खुद अपना काम करते हैं। तो स्टेशन के जो ऑटोमेटिक ग्लास डोर्स थे, शीशे के दरवाजे थे, ओपनड अप टू दीज, वो खुल गए टू डीज, इन तक पहुंचने के लिए, हाई टेक, हैविंग हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। हाई टेक मीन्स जिसमें एडवांस्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई हो और हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जिसमें हो, उसे हम हाई टेक कहते हैं। तो ये जो ग्लास डोर्स थे ये खुल गए थे इन हाई टेक लिटल व्हीकल्स की तरफ से, जो व्हीकल्स पॉड्स अंदर पार्क में, कार पार्क में थे, उन तक पहुंचने के लिए जो ग्लास के डोर्स पहले थे वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जब हम वहां पे पहुंच गए हमारे लिए वो खुल गए और हम अंदर स्टेशन की तरफ गए, उन छोटी गाड़ियों जहां पे वो छोटी कार्स जिन्हों हम पॉड्स कहते थे पार्क थे। दे वायर क्यूइंग अप आउटसाइड, दे वायर वो सभी यानी ये पॉड्स क्यूइंग अप एक लाइन में खड़े थे, क्यू मीन्स लाइन में खड़े थे, वेटिंग फॉर पैसेंजर्स और इंतजार कर रही थी अपनी सवारियों का कि कब उनकी सवारी आएंगे और उनमें चढ़ जाएंगे। दे लुकड लाइक टिनी हैचबैक कार्स, दे लुकड लाइक ये दिख रहे थे लाइक टिनी हैचबैक कार्स। हैचबैक कार्स मीन्स ऐसी कार जिसका बैक डोर जो होता है वो स्लोपिंग में होता है और उसको ऊपर लिफ्ट किया जाता है उसमें चढ़ने के लिए, तो उसको हम हैचबैक कार्स, और ये लग रहे थे टिनी हैचबैक कार्स। मैं आपको बता दूं जिस तरह से हमारी गाड़ियों में एक डिक्की हुआ करते हैं, जैसे आपने अगर वैन देखी हो उसमें पीछे एक डिक्की हुआ करते हैं, जब उसको उठाया जाता है तो वो इस तरह उसका जो डोर होता है स्लोपिंग डोर वो ऊपर उठता है, फिर उसमें सवारियां चढ़ते हैं या हम सामान उसमें रखते हैं, जो हमारे साथ गुड्स वगैरह होते हैं, जो लोड्स वगैरह होते हैं वह हम उसमें रखते हैं। और उसी तरीके से ये हैचबैक कार्स की तरफ दिख रहे थे। ऑलमोस्ट कंप्लीटली ओब्लॉन्ग इन शेप, और तकरीबन ये ओब्लॉन्ग थी। ओब्लॉन्ग मीन्स ये एक ऐसी फिगर है दैट इज लॉन्गर दैन इट इज विड्थ, जो उसकी चौड़ाई से उसकी लंबाई ज्यादा है, यानी चौड़ाई से लंबाई ज्यादा होते हैं, उसी ओब्लॉन्ग शेप में ये दिख रही थी। यहाँ आप देखो इनकी चौड़ाई जो है इनकी लंबाई से कम है, उसी ओब्लॉन्ग शेप में ये थी। आई कुड हॉर्डली सी द रबर व्हील्स, और बड़ी मुश्किल से इनके रबर व्हील्स नजर आ रही थी। दैट मीन्स ये जो रबर व्हील्स थे देवार ये हिडन थे, साइड से इस तरह के बंद थे कि रबर व्हील्स उसके दिखाई नहीं दे रहे थे। एंड देयर फ्रंट विंडोज रिमाइंडेड मी ऑफ द एडोरेबल फेस ऑफ ए हनी बी, और उसके जो फ्रंट विंडोज थे, जो सामने के शीशे थे, रिमाइंडेड मी उसने मुझे याद दिला देते, कलेक्टेड मी उसने मुझे याद दिला ऑफ द एडोरेबल एक लवेबल फैसिनेटिंग दिलकश फेस जो होता है एक हनी बी का, शहद की मक्खी का जो फेस होता है वो चूंकि लवेबल होता है, देखने के काबिल होता है, दिलकश होता है, ब्यूटीफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है, फैसिनेटिंग होता है, उसकी याद मुझे उसने दिलाई। जब मैंने इस पॉड्स की तरफ देखा तो इसने मुझे इसके सामने के जो शीशे थे, सामने के जो विंडोज थे, सामने के जो मिरर्स थे, जहाँ से ग्लासेस थे, वहाँ उसने मुझे याद दिलाई थी उस खूबसूरत, उन फैसिनेटिंग, उन दिलचस्प, उन लवेबल चेहरे की जो हनी बी के होते हो विथ लॉन्ग ब्लैक आइज, उस हनी बी के जिसके लंबी और काली आंखें होती हैं। तो पीपल गॉट इन, लोग इनमें चढ़ते थे, प्रेस्ड बटन, उसके बाद एक बटन प्रेस करते थे, एंड द डोर्स क्लोजर, दरवाजे बंद हो जाते थे। द लिटिल पॉड्स वायर फास्ट एंड मेड ऑलमोस्ट नो नॉइज, ये जो लिटिल पॉड्स थे वायर फास्ट, ये काफ़ी ज़्यादा तेज थे, एंड मेड ऑलमोस्ट नो नॉइज, क्योंकि ये बैटरी पावर्ड व्हीकल्स हैं तो इनमें ज़्यादा शोर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कार्स थी तो इनमें ज़्यादा शोर नहीं होता, तो एंड ऑलमोस्ट नो नॉइज, बिल्कुल शोर महसूस ही नहीं होता था। एंड दे वायर इंटायरली कंप्यूटर कंट्रोलर, और ये पूरे तरीके से कंप्यूटर कंट्रोलर थे, कोई मैनुअल ड्राइवर इसमें नहीं था। इट वाज कंप्लीटली ड्रिवन बाय कंप्यूटर। Imagine a car without a driver. Now the writer says that just imagine, आप अंदाजा लगाओ कि आप imagine करो कि एक गाड़ी ड्राइवर के बगैर कैसे चलती है। I had only read about something like that in a science magazine. मैंने इस तरह की गाड़ियों के बारे में जो ऑटोमेटिक हो, जो कंप्यूटर ड्रिवन हो, जो खुद ब खुद चलती हो, मैंने ऐसी गाड़ियों के बारे में सिर्फ साइंस मैगजीन में पढ़ा था।
I was actually going to sit in one, but today आज मैं एक्चुअल में ऐसी एक गाड़ी में खुद बैठा हुआ था। आज एक ऐसी गाड़ी में मैं खुद बैठा हुआ था जिसमें मैं सफ़र कर रहा था। बिफोर बोर्डिंग ए पॉड में बैठने से पहले, बोर्ड मीन्स राइड करने से पहले, उसमें चढ़ने से पहले, मॉम सेलेक्टेड डेस्टिनेशन ऑप्शन ऑन ए टच स्क्रीन कंप्यूटर ऑन द प्लेटफॉर्म में, जो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म होता है, जो इसकी जहाँ पे ये कार पार्कड होती है, वहाँ पे मॉम ने सेलेक्ट की डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल, कि हमें कहाँ पे जाना है। वो ऑप्शंस उसने टच स्क्रीन कंप्यूटर पे, एक टच स्क्रीन कंप्यूटर होता है जैसे हमारा एंड्रॉयड फ़ोन होता है, इसका भी टच स्क्रीन होता है। उसी टच स्क्रीन कंप्यूटर पे उसने वो ऑप्शंस, डेस्टिनेशन ऑप्शंस सेलेक्ट किए तो प्लेटफॉर्म पे। आफ्टर शी हैड मेड हर सिलेक्शंस, जब उसने वो सिलेक्शंस जब उसने वो ऑप्शन सेलेक्ट किए, द कंप्यूटर कन्फर्म्ड, कंप्यूटर ने उसे कंफर्म किया। आवर पॉड अराइव्ड, हमारी गाड़ी आ गई, हमारी पॉड आ गया। वेरी सून, जल्दी है। एंड व्हेन द डोर्स ओपनड, और जब दरवाजे खुल गए, आई सा इट वाज मच रूमियर दैन इट लुक्ड, मैंने देखा अंदर उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। इट वाज मच रूमियर, उसमें ज़्यादा स्पेस है दैन इट लुक्ड, जितना बाहर से दिख रहा था। बाहर से दिख रहा था कि छोटी है, छोटी गाड़ी है, लेकिन जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि इट हैज़ मच स्पेस इनसाइड, इट इज़ मच रूमियर इनसाइड, इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह अंदर है। 4 पीपल कुड फिट इन विथ ईज, इसमें आसानी से 4 आदमी बैठ सकते हैं। 4 पीपल, 4 आदमी, कुड फिट इन, इसमें बैठ सकते हैं, विथ ईज, आसानी से, यानी 4 लोगों के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह थी। एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर लगेज, और इतना ही नहीं, हमारी जो लगेजेस थे, हमारे जो बैगेज हमारे साथ थे, जो हमारा सामान हमारे साथ था, देयर वाज एनफ स्पेस फॉर देम, उनके लिए भी काफ़ी सारी जगह उस गाड़ी में मौजूद थी। वी गॉट इन, हम अंदर बैठ गए, चढ़ गए। एंड मम पुश्ड द बटन टू क्लोज द डोर्स, मम ने पुश किया, दबा दिया, प्रेस किया एक बटन को दरवाज़ा बंद करने के लिए। वंस इनसाइड, एक बार अंदर, आई फेल्ट एज इफ वी वर इन ए टिनी स्पेस शटल, एक बार मुझे अंदर ऐसा महसूस हुआ, इतना कंफर्टेबल था, बिल्कुल मुझे किसी किस्म की वो जो स्मूथली ये रन कर रहा था कि मुझे किसी तरीके से ये पता ही नहीं चला कि मुझे एक बार तो लगा मैं स्पेस शटल में हूँ। स्पेस शटल तो आपको पता है, ये एक ऐसी व्हीकल होती है जो एस्ट्रोनॉट्स को और उनके सामान को अर्थ से स्पेस तक ले जाती है और वहाँ से वापस ले आती है। तो मुझे लगा कि मैं छोटे से एक स्पेस शटल में हूँ। द सीट्स वर कंफर्टेबल एंड इट वाज वेरी क्लीन, इसके जो सीट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थे, वो काफ़ी ज़्यादा आरामदेह थे, जिस पे मैं रिलैक्स होकर बैठा था। एंड इट वाज वेरी क्लीन, और ये काफ़ी साफ़ सुथरा था। ये उसका दूसरा पार्ट था, कल हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ के रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं एज ए होम असाइनमेंट इस वीडियो के साथ अटैच करूँगा। थैंक यू।